Okay, Facebook is making us miserable. When Facebook was founded in 2004, it began with a seemingly innocuous mission to connect friends. Some 7 years and 800 million users later, the social network has taken over most aspects of our personal and professional lives and is becoming the dominant communication platform of the future. So, what does innocuous mean? Innocuous means something that doesn't harm anybody, that doesn't upset anybody, मतलब जो danger कुछ कोई danger cause ना करे. So it was founded with that motive. लेकिन अभी 7 साल के बाद what it has become all of us are aware. But this new world of ubiquitous, what is ubiquitous? मतलब ubiquitous connection, ठीक है. ubiquitous connection मतलब very common connection जो हर जगह same हो. But this new world of ubiquitous connection has a dark side. In my last post, I noted that Facebook and social media are major contributors to career anxiety. After seeing some of the comments and reactions to the post, it's clear that Facebook in particular takes it a step further. It's actually making us miserable. So it doesn't with the intention that it was made, that was to connect friends, but abhi we are saying that it is kind of creating an a kind of anxiety in people. Okay, he is proceeding, I am not proceeding. एक inferiority complex. आगे it says that Facebook's explosive rate of growth and recent product releases such as prominent news stickers, top stories on the newsfeed, and larger photos have all been focused on one goal, encouraging more sharing. That is, जो भी हो रहा है, न्यू न्यू चीज़ें आ रही हैं फेसबुक में, उसमें उसका बस एक ही मोटिव है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए. ठीक है. As it turns out, it's precisely this hyper sharing that is threatening our sense of happiness. जितना ज़्यादा हम शेयर कर रहे हैं, so it is threatening our sense of happiness. अब how does it threatening, इसके आगे बात की जाएगी, यहाँ नीचे में बात की जाएगी. बट इसमें ये होगा कि जब हम किसी को देखते हैं एंड वी सी कि वो आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर समवेयर लैकिंग बिहाइंड, तो उसमें हमारा सेंस ऑफ हैप्पीनेस, जो सेंस ऑफ कंटेनमेंट है, वो हम लोग धीरे धीरे अपने आप से ही ख़त्म करते जा रहे हैं. In writing Passion and Purpose, I monitored and observed how Facebook was impacting the lives of hundreds of young business people. As I went about my research, it became clear that behind all the liking, commenting, sharing, and posting, there was strong hint of jealousy. See, jealousy, anxiety, and in one case, depression. Said one interviewee about a Facebook friend, although he's my best friend, I kind of despise his updates. एक दोस्त ने अपने दोस्त के बारे में कहा. सो काइंड ऑफ ये जो इसका टॉपिक है, जो इसका हेडलाइन है, दैट इज हेल्पिंग अस टू नो कि इसके अंदर का कंटेंट क्या है. हम अगर सिर्फ इसके हेडलाइन को ही पढ़ेंगे और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, तो भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि व्हाट दिस एंटायर आर्टिकल इज़ अबाउट. Said another क्या, another interviewee, now Facebook is my work day. As I dug deeper, I मतलब the writer, as I dug deeper, I discovered disturbing byproducts of Facebook's rapid ascension. What is ascension? Let's see. Ascension means increase. So जो Facebook का इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें बढ़ रही हैं, इतनी जल्दी जल्दी फेसबुक की जो चीज़ें बढ़ रही हैं, जब इस राइटर ने उसके अंदर और जानने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया 3 new distressing ways in which the social media agent is fundamentally altering our daily sense of well-being in both our personal and work lives, that is professional lives. First, किस तरीके से? Now it is being elaborated here. First, it's creating a den of comparison. मतलब वो आगे बढ़ रहा है and I am somewhere lacking behind. It is creating a den of comparison. Since our Facebook profiles are self curated, मतलब उस चीज़ को हम लोग खुद ही बनाते हैं, so users have a strong bias towards sharing positive milestones, ठीक है, and avoid mentioning
द मोर हमड्रम्स, मतलब वो किस चीज़ में उनकी क्या खराबी है। देखिए, जब हम चीज़ों को बना रहे, फेसबुक वो ऐसी चीज़ है या उसका जो प्रोफाइल है ऐसी चीज़ है जो हम खुद से बनाते हैं, राइट। अब जब हम उसमें कुछ खुद से बनाएंगे तो उसमें डेफिनेटली वी विल नॉट बी शेयरिंग समथिंग जो हमारी खामी दर्शाए। हम हमेशा उसमें अच्छी चीज़ें ही बताएंगे, जैसे कितने हम पॉजिटिव हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स आवर ओन सेल्व्स। एंड उस चीज़ को जब हम फेसबुक में पोस्ट करते हैं, सो देर आर पीपल जो उस चीज़ को उस तरीके से देखते हैं कि ही हैज़ अ वेरी गुड लाइफ एज कम्पेयर टू माइन। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ जेलिसी, डिप्रेशन, इसके ऊपर लिखा था ना, आप उसको देखिएगा। Accomplishments like, hey, I just got promoted, or take a look at my new sports car. Trump sharing the intricacies of our daily commute, or a life shattering divorce. This creates an online culture of competition and comparison. One interviewee even remarked, I am pretty competitive by nature, so when my close friend posts good news, I always try and make and ट्राई एंड वन ऑफ देम, मतलब आई मेक वन ऑफ देम। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो अगर कुछ अच्छी चीज़ें डाल रहा है तो झूठी सही मैं भी कुछ डाल देता हूँ। हाँ, इसमें ये भी है कि कोई भी अपनी बात ये नहीं बताएगा कि आई गॉट डिवोर्स्ड या फिर मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, वो हमेशा अच्छी चीज़ें ही बताएगा। Comparing ourselves to others is a key driver of unhappiness. खुद को अगर दूसरों से कंपेयर करेंगे तो इट इज़ लाइक हम लोग खुद को अनहैप्पीनेस की तरफ लेते जा रहे हैं या अनहैप्पीनेस को अपनी तरफ बुला रहे हैं। Tom DeLonge, author of Flying Without a Net, even describes a comparing trap. He writes, who? Tom DeLonge. He writes, no matter how successful we are and how many goals we achieve, this trap causes us to recalibrate our accomplishments and reset the bar of how we define success. तो इन्होंने कहा कि कितनी ही चीज़ें हम क्यों ना कर ले, ये कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है कि हमारा जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है उस चीज़ में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क छोड़ा जाएगा अगर हम इस चीज़ को कंपैरिजन को आगे लेते जाएंगे या फिर कंपैरिजन करते जाएंगे। एंड दैट इज़ द ह्यूमन नेचर। एज वी जज द एंटायरिटी ऑफ आवर own lives against the top 1% of our friends' lives, we are setting impossible standards for ourselves, making us more miserable than ever. ठीक है, सेकंड, ये पहली बात थी, यहाँ से यहाँ तक पहली बात थी। अब सेकंड, इन्होंने कहा था ना 3 बातें हैं, 3 न्यू डिस्ट्रेसिंग वेज। तो पहली बात ये हो गई। सेकंड, इट्स फ्रैगमेंटिंग आवर टाइम, हमारे टाइम को ये ख़राब कर रहा है। Not surprisingly, Facebook's horizontal strategy encourages users to log in more frequently from different devices. My interviewee regularly accessed Facebook from the office, at home through their iPads, and while out shopping on their smartphones. This meant that hundreds of millions of people are less present where they are. स्केचिंग ओके। तो दूसरी बात, ये हमारा टाइम खर्च कर रहा है। हम कुछ भी करें, अगर हम घर पे होंगे तो भी हम फेसबुक चलाएंगे, सॉरी हाँ ऑफिस पे होंगे तो भी हम फेसबुक चलाएंगे, घर पे होंगे तो भी हम चलाएंगे, और शॉपिंग मॉल में होंगे शॉपिंग करेंगे तो भी हम फेसबुक चलाएंगे। मतलब दिन भर हम जो काम जिस जगह पे होते हैं उस जगह पे हम वाकई प्रेजेंट नहीं होते, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, बट वी आर मेंटली एब्सेंट, वी आर मेंटली प्रेजेंट समवेयर एल्स, एंड दैट समवेयर एल्स इज फेसबुक। Sketching out a mind-numbing presentation for the board meeting. Perhaps it's time to reply to our message. Stuck in traffic? It's time to browse your newsfeed. Recounted one interviewee, I almost got hit by a car while using Facebook crossing the street. मतलब लोग फिजिकली जगह पे प्रेजेंट हैं कि मीटिंग हो रही है, लेकिन उस मीटिंग के बीच में ही उन्हें जाना है फेसबुक में। अगर वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो टाइम का सदुपयोग नहीं, उसे दुरुपयोग कहेंगे। उसको टाइम को वेस्ट करने के लिए या टाइम को कहीं इन्वेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, फेसबुक में चले जाते हैं। एक इंटरव्यूअर ने कहा कि आई ऑलमोस्ट गॉट हिट, मतलब एक्सीडेंट होते होते बचा जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था,
और ये कैसे हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं फेसबुक चला रहा था। ठीक है, लिविंग द रिस्क ऑफ रियल फिजिकल हार्मसाइड। चलिए, फिजिकल जो हार्म होगा, एक्सीडेंट होगा, चोट लगेगी, उस चीज़ को हम हटा देते हैं कुछ टाइम के लिए। द इशू विद अ कॉन्स्टेंट टैबिंग बिटवीन रियल लाइफ टास्क एंड फेसबुक इज व्हाट इकोनॉमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट कॉल स्विचिंग कॉस्ट, the loss in productivity associated with changing from one task to another। मतलब फिजिकल जो हार्म होगा उस चीज़ वो तो होगा ही, अगर हमारा ध्यान नहीं रहेगा, हम कोई काम कर रहे होंगे, रोड क्रॉस कर रहे होंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें यस। लेकिन अगर फिजिकल हार्म को हम एक साइड रखें, हम अगर इस चीज़ को देखें कि हम एक काम कर रहे हैं और उस काम के दौरान हम दूसरा काम कर रहे हैं, दैट इज़ वी आर गोइंग टू टुवर्ड्स फेसबुक, तो उस दौरान हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को इकोनॉमिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने एक टर्म दिया है, दैट इज़ स्विचिंग कॉस्ट। मतलब इसमें क्या हो रहा है, हम लोग ना इस तरफ ढंग से प्रेजेंट हो पा रहे हैं, ना उस तरफ, हमारी प्रोडक्टिविटी ख़त्म होती जा रही है। जितने प्रोडक्टिवली हम एक काम को कर सकते थे विदाउट बीइंग इन्वॉल्व इन दी अदर थिंग, अब उस चीज़ में हमारा जहन दूसरी चीज़ में बट चुका है। ठीक है, फेम्ड ऑथर डॉक्टर श्री कुमार राव attributes mindfulness over multitasking as one of his 10 steps of happiness at work। अब एक ऑथर जिनका नाम है साई कुमार राव, उन्होंने क्या कहा है कि एक वक्त में एक ही चीज़ किया जाए और उसको माइंडफुलनेस, उसको पूरी तरीके से किया जाए। एंड इस तरीके से उन्होंने कहा है कि 10 में से एक स्टेप उनका ये है टुवर्ड्स हैप्पीनेस at work, definitely at work। He argues that constant distraction lead to late and poor quality output, negatively impacting our sense of self-worth। अब उन्होंने आगे कहा है कि जब हम constantly distract होते हैं, बार बार एक चीज़ से हम distract होते हैं, तो हम एक तो अपना जो काम कर रहे होते हैं उसमें लेट होते हैं, और पुअर क्वालिटी, जितने अच्छे तरीके से हम काम कर सकते थे और भी ख़राब क्वालिटी से हम करते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान बटा रहता है। ठीक है, उन्होंने इसे बताया कि एक तो हमारा ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा किस चीज़ पर, हमारे सेल्फ वर्थ पर, हमारी वैल्यू पर, हमारी कीमत पर। ठीक है, लीविंग द रिस्क ऑफ रियल फिजिकल हार्मसाइड, द इशू विथ दिस कॉन्स्टेंट टैबिंग, मतलब टैबिंग मतलब एक काम से दूसरे काम में स्विच करना, बिटवीन रियल लाइफ टास्क एंड फेसबुक इज़ वॉट इकोनॉमिस्ट and psychologists call switching costs, the loss in productivity associated with changing from one task to another। Fame, I think ये प्रिंटिंग एरर है, सेम चीज़ दो बार प्रिंट हो गई है। चलिए, ये 2 पॉइंट है। And the third point, that is the last point, there is a decline of close relationship। So this is one of the most important points to be studied, कि हमारा जो क्लोज रिलेशनशिप है उसमें डिक्लाइन हो जाता है। कैसे होता है, लेट्स गो। गॉन आर द डेज वेयर फेसबुक merely complemented our real life relationships। Now Facebook is actually winning a share of our core offline interaction। One participant summed it up simply: we Facebook chat instead of meeting up, it's easier। क्लोज रिलेशनशिप अब हमारा ख़त्म होते जा रहा है। कैसे, इनके एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि हम अब चैटिंग कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ मीटिंग। हम मिलते नहीं हैं, हम सिर्फ चैट कर लेते हैं, हम अब फेसबुक में मैसेजेस के ज़रिए बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये ईजियर होता है। अब आगे देखिए, एज फेसबुक एड्स न्यू फीचर्स सच एज वीडियो चैट, इट इज़ बिकमिंग वायबल सब्सटीट्यूट फॉर मीटिंग्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग्स एंड इवन फैमिली गेट टुगेदर्स। अब जैसे फेसबुक में नई चीज़ें ऐड की हैं, उनमें से एक नई चीज़ है वीडियो चैट, तो ये हमारे लिए आसान होता जा रहा है। वायबल मतलब जो सक्सेसफुली हो जाएगा, ये देखिए, दैट कैन बी डन, दैट विल बी सक्सेसफुल। अब ऐसे क्या हो रहा है, इसमें हम मीटिंग कर सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग कर सकते हैं, और इवन फैमिली गेट टुगेदर्स भी कर सकते हैं। बट ईच टाइम ऑफ फेसबुक इंटरेक्शन रिप्लेसेस अ रिचर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ वन ऑन वन मीटिंग। जितनी बार फेसबुक इस चीज़ को रिप्लेस कर रहा है, such as an in-person meeting, a long phone call, or even a date at a restaurant, people miss opportunities to interact more deeply than Facebook could ever accommodate।
अब जब हम ऐसे मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, या फिर वीडियो कॉल्स पे बात कर रहे हैं, तो हमारा जो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग की सलाहियत है, कि कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे हम खोते जा रहे हैं। वन ऑन वन फेस टू फेस जितनी अच्छे से हमारी बात होगी, फेसबुक में बिल्कुल बात नहीं हो पाएगी। सो दिस व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू से। ठीक है। As Facebook continues to add new features to help us connect more effectively, the battle to maintain offline relationship will become even more difficult, which will impact the overall quality, especially in the long run. अब जैसे ही फेसबुक ये नई चीज़ों को और बढ़ाता जाएगा, वैसे ही हमारे जो ऑफलाइन रिलेशनशिप्स है, मतलब लोगों से मिलना, दोस्ती, बातचीत, हंसी मजाक, वो धीरे धीरे और कम होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी ख़त्म होती जाएगी और उस पर इम्पैक्ट आएगा। और ये नज़र अभी नहीं आएगा, ये हमें नज़र आएगा बाद में, इन अ लॉन्ग रन। काफ़ी लंबे टाइम तक वो रिश्ता नहीं चल पाएगा। ठीक है, चाहे वो दोस्ती हो या रिश्तेदारी हो, एनीथिंग। Facebook is negatively affecting what psychology professor Jeffrey Parker refers to as the closeness properties of friendship. दोस्ती में करीबी। फेसबुक उस चीज़ को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। सो व्हाट शुड वी डू? हम क्या कर सकते हैं कि इन 3 ट्रैप्स से हम बच सकें? पहला ट्रैप ये, आखिरी ट्रैप ये है कि क्लोज रिलेशनशिप्स ख़त्म हो रहे हैं। सेकंड ट्रैप ये है कि हमारा टाइम ख़त्म होता जा रहा है। फर्स्ट ट्रैप क्या है? कंपैरिजन होता जा रहा है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इन ट्रैप्स को अवॉइड कर सकें, हम इन ट्रैप्स में ना फंसें? Recognizing the quitting Facebook altogether is unrealistic, and we can still take measures to alter our usage patterns and strengthen our real world relationship. अब देखिए, क्विट फेसबुक करना तो ऐसी बात हो गई जैसे आज के ज़माने में नहीं, यू नीड टू बी ऑन फेसबुक टू बी अवेयर ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। क्विट कर देना फेसबुक को, उसे अनइंस्टॉल कर देना या अपने अकाउंट को डिलीट कर देना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। हम ना तो उसे पूरी तरीके से क्विट करेंगे और ना ही हम पूरी तरीके से उसमें एंग्रॉस्ड होंगे। बस हमें एक मेजर लेना है, हमें उस चीज़ को देखना है और उसमें एक पैटर्न बनाना है। हमारे जो रिलेशनशिप है रियल वर्ल्ड में, उस चीज़ को स्ट्रेंथन करना है। सम यूजफुल टैक्टिक्स आई हैव सीन इंक्लूड ब्लॉकिंग द डेजिग्नेटेड टाइम फॉर फेसबुक। ऑफकोर्स आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतने टाइम तक मुझे फेसबुक को देना है, रादर देन विजिटिंग इंटरमिटेंटली, मतलब बार बार अचानक अचानक से। ठीक है, रुक रुक कर हम एक टाइम फिक्स कर लेंगे कि इतने से इतने देर, मैक्स टू मैक्स मुझे 30 मिनट्स या 45 मिनट्स देना है, रादर देन हर 10-10 मिनट में हम फेसबुक को विजिट कर रहे हैं। ठीक है। Selectively trimming Facebook friend list to avoid undesirable ex-partners and gossipy co-workers. अब एक तो टाइम हम लोगों ने देख लिया, अब सेकंड क्या, हम अपने फ्रेंड लिस्ट को कम कर देंगे कि हमें जिन लोगों से बात रखनी है, ताल्लुक़ रखना है, उन लोगों को हम अपने साथ रखेंगे और जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उन लोगों को हम हटाते जाएंगे। एंड इन्वेस्टिंग मोर टाइम इन बिल्डिंग ऑफलाइन रिलेशनशिप्स, और उस जो हमारे ऑफलाइन रिलेशनशिप्स है उसमें हम अपना ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है। द पर्टिकुलरली करेजियस चूज courageous choose to delete Facebook from their smartphones and iPads and log off the platform entirely for long stretches of time. देखिए, इन्होंने लिखा है कि जो करेजियस लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे के पूरी तरीके से फेसबुक को डिलीट कर देते हैं, अपने फ़ोन या आईपैड जिससे भी वो यूज़ करते हैं, लॉग आउट कर लेते हैं। और तो और मतलब लॉग आउट मतलब हाँ, ये समझ लीजिए कि जो करेजियस लोग होते हैं वो ये सब करते हैं। So this is it, we have come to the end of this article. एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, just go through it, it will be done. चलिए, thank you.